सदाप्रभु अब्राहम को कहले तुमे अपना देश व ज्ञाति कुटुंब व पौत्रिक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा से देश को जाओ। आम्भे तुमठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा पुणे आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुमर नाम महत करिबा। तुमे आशीर्वाद आकार हेब। जो माने तुमको आशीर्वाद करती से आशीर्वाद करिबा पुणी जे कहीं तुमको अभिशाप दिए आम्भे ताहाको अभिशाप देबा आउ तुम ठारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। अनंतर अब्राहम सदाप्रभुଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଘେନି କିନାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିନାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେହି ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିକିମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମରିର ଆଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉତ୍ତରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିନାନ୍ୟମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ନିକଟରେ ଦର୍ଶନଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏଉତାରୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବେଥେଲର ପୂର୍ବ ଆଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଠିଆ କଲେ। ତହିଁର ପଶ୍ଚିମରେ ବେଥେଲ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅୟନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ସେହିଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଅବ୍ରାହମ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଡାକରାର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଏହା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ। ଆଜି ସେହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବ ପଦଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଉର୍ ନାମକ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଉର୍ ସହରରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପିତା ତେରହ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଉର୍ ସହରରେ ସେ ନିଜର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏହି ଉର୍ ସହରରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଉର୍ ସହରରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି।
এই ଉର୍ ସହର ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସହରରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଜବୁତ ହେଇକି ସେହି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ସହର ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଥିଲା। ଅତି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସହରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସହର ଆଖପାଖ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖ ସହରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ସହରକୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଆସିକି ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସହର ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, କୌଶଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଜାଗତିକ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସହରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ସହରରେ ଯେହେତୁ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ହୁଏତ ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ସହର ଗୋଟିଏ ବିକାଶଶୀଳ ସଭ୍ୟତାର ସହର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅତି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ହୁଏତ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେହେତୁ ଏହି ସହରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ଆରାମ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ସହରରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହି ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟର 5 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ଉର୍ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି କିନାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି ସେ କିନାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଉର୍ ସହରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଣା ନଥିଲା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସହର ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସହରରୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ସହରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣା ପୌତ୍ରିକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ପୌତ୍ରିକ ଗୃହ, ଆପଣା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି সেই ଦେଶକୁ ଯାଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଠାରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ସେ ଅତି ଖୁସିରେ ସେହି ସହରରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସହର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା।
से अति सुखरे शांति रे आराम रे से सहर रे शारीरिक समस्त स्वच्छंद आराम और सुरक्षा अब्राहम से सहर रे थिला। मोर प्रिय माने एई प्रकार गोटे समय रे सदा प्रभु परमेश्वर तांको कहउछंती तुमे एही सहर परित्याग करी तुमे गोटे अज्ञात देश को जाओ। सदा प्रभु कहउछंती तुमे जो सहर रे खुशी रे अछ, शांति रे अछ, आराम रे अछ, तुमर कोनोसी अभाव नाही, सेही सहर को परित्याग करी सेही गाँ को परित्याग करी तुमे गोटे अज्ञात देश को जाओ बोली सदा प्रभु परमेश्वर कहउछंती। सदा प्रभु परमेश्वर आपण मानकु आ मते मते होतो एही प्रकार कहि पारंती। जेतरा आमांक जीवन रे सब किछि भलो चलिछि, जेतरा आमांक परिवार रे सब किछि भलो चलिछि, आमांकर कौनसी अभाव नाही, कौनसी विषयर आवश्यक नाही, निजर जीवन संपूर्ण रूपे कलरफुल चली एही प्रकार समय सदा प्रभु परमेश्वर से सब विषय को परित्याग करबा आह्वान करते। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को डाकरा मोर प्रिय माने जे कोन समय रे आसी पारे। ईश्वर डाकरा आपण प्रति आसवा कौन से समय कौन से निर्दिष्ट समय नहीं। ईश्वर जे कौन से समय आपण मानक आह्वान कर पारती। हे तो आपण जो गाँव में बास करछंती, आपण जो मंडली रे गिरजा करछंती, आपण जो गृह रे बास करछंती, सेटारे जागतिक शारीरिक आवश्यकता गुड़िक पूर्ण होगी थाई पारे, आपणकर कौन अभाव न थाई पारे, आपण अत्यंत खुशी रे थाई पारती, शांति रे थाई पारती, किंतु ईश्वर कार्य निमंते आपन को से प्रकार परिस्थिति रे मध्य आपन को आउ गोटे अज्ञात देश को, अज्ञात जगह को, अज्ञात स्थान को जीवा में ईश्वर डाकरा आसी पारे। आपण माने प्रस्तुत अछंती, आपण माने से समस्त सुख, से समस्त स्वच्छंद, से समस्त आराम परित्याग करेकी से अज्ञात जगह जो विषय आपण केबे सुनी नांती, जो जगह के आपण देखि नांती, सेटाकार लोक को प्रकार से माने कोन भाषा करती, आपनकर जीवन सेटारे की प्रकार हेबो ए प्रकार न जानिथिबा जगह को आपण मानक जीवा को पड़ी पारे। आपण माने प्रस्तुत अछंती कि एहा समीक्षा करिबार समय मोर प्रिय माने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आम्बे माने सदा प्रभु उद्देश्य रे अपना सब किछि परित्याग करिबा पाए प्रस्तुत अछु कि सेदिन अब्राहम अपना सब किछि परित्याग कर देउले। जेतले सदा प्रभु परमेश्वर कहले अपना पौत्रिक गृह, अपना सब बंधु बांधव सब किछि परित्याग करी तुमे गोटे अज्ञात देश को जाओ। सेतले से ईश्वर से वाक्य सुनी से प्रस्थान करथिले बोली आज वाक्य रे लिखा जायछि। हालेलुया। आम्भे माने मध्य कौन अब्राहम को तुल्य ईश्वर ठारे विश्वास करिकी आमाने बाहरिबा पाई प्रस्तुत अछु कि सेदिन अब्राहम ईश्वर ठारे विश्वास करी बाहरिले आ से विश्वास रे से जायकी कोठी पहुंचले, किनान देश रे जाय से पहुंचले। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ठारे सेदिन अब्राहम कौन से संदेह करि नाही। मोर प्रिय माने अब्राहम परमेश्वर ठारे कौन से संदेह कले नाही जे परमेश्वर काहे मते गोटे अज्ञात स्थान को पठाउछंती। किए बा अब्राहम परमेश्वर को प्रश्न मध्य करिनांती काहे जीवी, कौन पाई जीवी, जाई कि कौन करिवी, मोर जीवार निहांती आवश्यक अछि कि
गले मते कौन मिल न गले हेब ना कि ए सब प्रश्न से दिन अब्राहम परमेश्वर को पचारि ना मोर प्रिय भाई अब्राहम जेतले ईश्वर वाक्य से शुणिले ईश्वर कथा शुणिले जे तुम्हें सब किसी परित्याग करिकी तुम्हें किरान देश को जाओ से गले हालेलुया हालेलुया जेतले परमेश्वर कहउछंती जाओ आपण माने जीवा पाए प्रस्तुत अछंती की जेतले ईश्वर कहउछंती तुम्हें आसो आपण माने आसीबा पाए प्रस्तुत अछंती की सेदिन अब्राहम ईश्वर पर विश्वास करके से प्रस्थान करे आपण माने से अब्राहम को तुल्य ईश्वर पर विश्वास करके तांकर उद्देश्य निमंते जीवा पाए प्रस्तुत अछंती कि हालेलुया हालेलुया आज कालीर प्रभुंकर लोक माने जदि से मानकु कहा जाए जे तुम्हें यही वर्ष से मंडली जा सेवा करो आजकल पालक चालक माने जीवाई तो प्रस्तुत किंतु से माने जगह देखी था कौ जगह को गले बेस्ट कौटी गले भल उपासना हम जीवा कष्ट ना घाटी चढ़ा पड़ो ना रास्ता साइड थीबार अच्छी दान भल मिलुवा अच्छी यही प्रकार स्थान मान आजिकल प्रभुंर लोक मैंने जीवाई इच्छा करता से सुख स्वच्छंद को परित्याग करने इच्छा करती आजिकल जदि कह जाए जे तुम्हें गुडारी से गंजुगुड़ा सेवा कार्य कर तो आज अनेक लोग इच्छा कर पारती कारण गंजुगुड़ा जावा पड़े कम से कम 2 घंटा चलवा पड़ो घाटी ए नाक चढ़ला भाई घाटी पूरा मु थे गली अणविश्वास चढ़नी किंतु बहुत कष्ट चढ़ी भाविले फेरी पारि ना एत बड़ घाटी एमती जगह को जदि आजिकल गोटे पालक को चालक को जब पठा से खुशी जीव कि हे भगवान गंजुगुड़ा मत पठेबे कि एत बड़ घाटी सब रविवार चढ़ार अच्छे मत से घाटी आठाकार लोक मैंने गोटे 2 जन कि 3 जन का चर्च गिरजा घर बसुँच से 2 जन एत बड़ घाटी मुझे चढ़ी जीवी यही प्रकार प्रश्न करपारती आजिकल प्रभुंर भगवान किंतु अब्राहम से दिन कौन सी प्रश्न सरा प्रभु ठारे कही ना जे मुझे जीवी एटा केते दूर घाटी अच्छी कि जीवाई रास्ता रास्ता अच्छी कि ये सब किसी से पचारि ना जिते सदाप्रभु कहले तुम्हें जाओ आते अब्राहम सब किसी परित्याग कर चलीगले हालेलुया 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 मोर प्रिय माने से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट निस्तार पर्वर शेष 5 दिन निजर शिष्य मान से कहले जे तुम्हें जाओ आओ से गोटे गाँव को जाओ से गाँव गोटे गध आ गध छुआ बंधाई तुम्हें फिटे आन जदि फिटेला बेले जदि कहीं देखे तुमको प्रश्न करे तुम्हें कह यहाँ प्रभुकर प्रयोजन अच्छी छाड़देव शिष्य मैंने गोटे कथा शुणी से गाँव को चलीगले जीशु को पचारि ना क्या घर को जीवु क्या गुहाल को जीवु कौ गुहाल बंधाई कौ कलर गध से सब से पचारि ना जीशु जो कहले तुम्हें जाओ निकटस्थ से ग्राम को गोटे गध गध छुआ बंधाई तुम्हें पिटे से गोटे कथा शुणी गले पिटे से जीशु को कौन प्रश्न करना से कही ना पचारे ना जब आम फिटेला पैसा जब से लोक मांग पचारे कि पचारे ना जदि गध फिटेला से गधर मालिक जब पैसा मांग कौन कर पचारे के कथा जदि से आमको मार चुड़े कि नौच बोली
ताले हम कौन करिबे सब पचारिले कि नाइ जीसु से मान कहले तुम्हें जाओ और से माने गले से माने विश्वास गले और विश्वास जाए पहुंचले। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने से दिन अब्राहम विश्वास रे बाहरी गले पुणी ईश्वर को आशीर्वाद रो अधिकारी हे पाइले। हालेलुया। अब्राहम अपना पौत्रिक गृह अपना बंधु बांधव अपना सबू किछि परित्याग करी विश्वास करी से बाहरी गले ए हेतु से ईश्वर को आशीर्वाद दे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को महान आशीर्वाद रो अधिकारी हेले आ अनेक निमंते से आशीर्वाद रो आकार हेले बोली आज वाक्य रे लिखा जाय। हालेलुया हालेलुया। सदा प्रभु परमेश्वर आज वाक्य रे कहउछंती आम्बे तुमको ठारो एक महान गोष्ठी उत्पन्न करिबा। हालेलुया हालेलुया। सदा प्रभु परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा करि कहउछंती आमे तुमको जो देश देखाइबा से देश को सब किछि परित्याग करके जाओ जदि तुम्हें जीव आमे तुम ठारो के महान गोष्ठी उत्पन्न करिबा आमे तुमको आशीर्वाद करिबा एवं तुमर नाम महान करिबा। हालेलुया हालेलुया। आमे तुमको आशीर्वाद करी आमे तुमर नाम महान करिबा और तुम्हें आशीर्वाद रो आकार हेबो बोली सदा प्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहउछंती। मोर प्रिय माने सदिन अब्राहम ईश्वर कथा विश्वास करी से विश्वास रे से किनार देश रे जाई पहुंचले और सदा प्रभु परमेश्वर तांको आशीर्वाद करे और समस्त लोक कथारो तांकर नाम को महान करे। हेतु आज अब्राहम आदि पिता बोली कहा जाए अब्राहम को। अब्राहम होचंती प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मानव निमंते से आदि पिता अटंती से विश्वासर पिता अटंती कारण अब्राहम ईश्वर कथारे विश्वास करे से विश्वासर पिता अटंती से ईश्वर विश्वास करथिबा हेतु सदाप्रभु परमेश्वर तांकर नाम को अति उच्च रे रखले तांकर नाम अति महान कले आओ तांको ठारो गोटे महागोष्ठी उत्पन्न कले सदाप्रभु परमेश्वर आउ से बोलछन्ती सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहछन्ती आमे तुमको आशीर्वाद करिबा तुम ठारो एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा आओ जो माने तुमको आशीर्वाद करिबे आमे ताको आशीर्वाद करिबा आओ जो माने तुमको अभिशाप करिबे आमे से ताको अभिशाप देबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जदि आपण माने सदाप्रभु परमेश्वर को वाक्य सुनती सदाप्रभु परमेश्वर डाकरा को सुनी कि ताकर आज्ञा पालन करवछती ताले सदाप्रभु आपण मानक आशीर्वाद करिवे सदाप्रभु परमेश्वर आपणकर नाम महान करिवे सदाप्रभु परमेश्वर आपण मानक ठारो गोटे महागोष्ठी उत्पन्न करिवे आउ जो माने आपण मानक आशीर्वाद करिवे सदाप्रभु परमेश्वर से मानक आशीर्वाद करिवे आउ जो माने आपण मानक अभिशाप देवे सदाप्रभु परमेश्वर से मानक अभिशाप देवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को ठारो गोटे महान गोष्ठी उत्पन्न कले आउ केवल एही गोष्ठी जे आशीर्वाद प्राप्त हैला ता नुहे अब्राहम को जोगु समस्त जाति समस्त राष्ट्र समस्त लोक समस्त वंश आशीर्वाद प्राप्त हेले केवल अब्राहम को गोटे विश्वास हेतु आज आपण माने आउ मु पुरी आम परी अनेक लोक आज आशीर्वाद प्राप्त होइछन्ति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस्राएल देश
जहाँ अब्राहम औरसर उत्पन्न कराई सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को इस्राएल देश को से निर्माण कले ए देश परमेश्वर अनुगामी है। हालेलुया। ए इस्राएल देश सदाप्रभु परमेश्वर अनुगामी है। आउ ए देश जो लोक मानकर संस्पर्श आसला जो लोक मान साक्षात आसिले से समस्त को सदाप्रभु निकट को आकर्षित कर देश जो आज अनेक लोग सदाप्रभु परमेश्वर परिचय पाई देश जो आज अनेक लोग से जीशुख्रीष्ट को ग्रहण कर जीशुख्रीष्ट परिचय पाई परित्राण अधिकारी हो पारी। हालेलुया हालेलुया। सदाप्रभु अब्राहम को आशीर्वाद हेतु अब्राहम इस्राएल देश उत्पन्न है। इस्राएल देश दे आज समग्र पृथ्वी आशीर्वाद कारण हो पारी आशीर्वाद प्राप्त हो पारी। हालेलुया। अब्राहम वंशावली जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करे। आम मैंने जब वाक्य देखा माथु लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय जदि देखा जीशुख्रीष्ट जन्मर विवरणी से दिखाई देखा जीशुख्रीष्ट अब्राहम वंशावली से सृष्टि होती अब्राहम वंशर से जन्म होती जीशुख्रीष्ट द्वारा समग्र मानव जाति को परित्राण आसला। से जीशुख्रीष्ट द्वारा आपण माने परित्राण प्राप्त हेलु। से अब्राहम को जो आज आम समस्ते आशीर्वाद प्राप्त हो ख्रीष्टों द्वारा मनुष्य ईश्वर ठारे व्यक्तिगत संपर्क स्थापन कर सुजोग पाइला एवं ईश्वर से असीम आशीर्वाद अधिकारी हो पारि। मोर प्रिय माने परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद करी महान करने प्रतिज्ञा कले किंतु ईश्वर गोटे शर्त थिला। ईश्वर गोटे शर्त थिला गोटे कंडीशन थिला मु तुमको आशीर्वाद करी सत मु तुमर नाम को महान करी सत तुम ठार गोटे महान गोष्ठी उत्पन्न करी सत किंतु तुमको किसी करने पड़ो। गोटे शर्त अच्छी ईश्वर परमेश्वर गोटे शर्त अच्छी आउे ईश्वर जहाँ इच्छा करती अब्राहम को ताहा पड़ो। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर जहाँ इच्छा करती अब्राहम को ताहा पड़ो। अब्राहम को ईश्वर इच्छा साधन करने पड़ो तेबे जाई सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद करेंगे। तेबे जाई सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद करेंगे एवं तांकर नाम को महान करेंगे और तांकर ठारू गोटे महान गोष्ठी उत्पन्न करेंगे। यह करने अब्राहम को ईश्वर इच्छा साधन करने पड़ो। मोर प्रिय माने यार अर्थ है अब्राहम अपना सबू किसी परित्याग करी अपना पौत्रिक गृह अपना परिवार वर्ग बंधु बांधव एवं सबू किसी परित्याग करी गोटे अज्ञात देश को जीवाक पड़ो। जो अज्ञात देश में अब्राहम गोटे अब्राहम को नहीं सदाप्रभु परमेश्वर गोटे महागोष्ठी उत्पन्न करेंगे सदाप्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा कर। हालेलुया। अब्राहम ईश्वर शर्त पालन करे। मोर प्रिय माने से ईश्वर आज्ञा पालन कले एवं से आगामी भविष्य से आशीर्वाद प्राप्त करने पुणी अन्य मानक आशीर्वाद कारण होगा से ईश्वर विश्वास करके से निजर पौत्रिक गृह निजर देश परित्याग कर से अज्ञात देश को यात्रा कले। मोर प्रिय माने आपण माने अब्राहम तुल्य ईश्वर इच्छा साधन करने प्रस्तुत अच्छा।
आपण माने मध्य ईश्वर इच्छा को साधन करने प्रस्तुत अच्छा कि जदि आपण माने ईश्वर इच्छा को साधन करेंगे आपण माने अब्राहम को तुल्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमाने केते लोक ईश्वर इच्छा साधन करने प्रस्तुत अच्छा। आज जगतर लोक माने ईश्वर इच्छा नुहे निजर इच्छा निजर जागतिक अभिलाष निजर जागतिक स्वच्छंद निजर चक्र अभिलाष को सर्वदा पूर्ण करने साधन करने प्रस्तुत किंतु ईश्वर इच्छा साधन करने किए प्रस्तुत नहांती। से दिन सदाप्रभु परमेश्वर निनिवीर लोक मानकर दुष्टता देखिले आओ जुनस को कहले तुमे उठ से निनिवी लोक मान पाखक जाओ आओ आमर वाक्य से घोषणा करो जो से मन परिवर्तन कर आम निकट को फेरी आसबे। मोर प्रिय माने जुनस उठिला गला किंतु गला पारे से निनिवी को जीवा गला सदाप्रभु परमेश्वर ताके कहथिले जे तुमे निनिवी को जाओ। जुनस उठिला गला किंतु से गला तर्शीश को से कौटी के गला तर्शीश को गला। सदाप्रभु जो जगह को पठौले से जगह को से जीवा को इच्छा न करी से निज इच्छा रे आउ गोटे जगह को से जीवा पाए बाहरेला। आ आपण माने से कहानी निश्चय जानिबे से जीवा बेले से नौका रे बसिला सदाप्रभु परमेश्वर गोटे भयंकर झड़ समुद्र मध्य रे पठेले। से जेतबे ईश्वर को इच्छा विरुद्ध रे से अंत जगह को जीवा पाए बाहरिले से सदाप्रभु परमेश्वर से समुद्र मध्य गोटे भयंकर झड़ सृष्टि करे आ जहाज बुड़ीबा को लागिला। जेतबे जहाज बुड़ीबा को लागिला से जहाज भितर बसित प्रत्येक लोक से माने अपना देवता मानकु प्रार्थना करबा को लागिले हे प्रभु रक्षा करो हे प्रभु रक्षा करो बोली प्रार्थना करबा को लागिले। ए व्यक्ति जुनस से जहाज शेष भाग में मजार शुई पड़ी जहाज अधिकारी देखला ए लोकटा शुई पड़ी गला रेमोट को उठे आमे पानी रे बुड़ी मरिबा को जाऊछु आमे प्रार्थना करूछु निज निजर देवता मान को आमे रक्षा पाऊनु हुए तो तुमर देवता को प्रार्थना करो तुमे जदि प्रार्थना करिवो तुमर देवता होइबा तुमर प्रार्थना सुनिबो और आमान को समस्त रक्षा करिवो। आउ से प्रार्थना करने समय से जहाज बुड़ीबा को जीवा समय से लोक मान कहते यही दुख यही झड़ कहीं आसला चल तो जाना गुणीबांत करवा आते गुणीबांत करा जुनस पक्षे पड़ुछि से जुनस से निज चिंतारू से फेरुंट आ कहते मो हेतु यही समस्या आसी झड़ आसी मत जहाज समुद्र मध्य फेंकी दियो। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने आज माने अनेक लोक अच्छु ए जुनसंग तुल्य सदाप्रभु परमेश्वर आम धोजु गुड़ा को पठेला बेल को आम चाहूँ हरला गुड़ा को ना हरला गुड़ा रास्ता साइड ना रास्ता कलर अच्छे तेरे हरला गुड़ा गंजुला जावार इच्छा ना ए प्रकार आज आज अनेक लोक अच्छा ईश्वर जो स्थान को पठेवा इच्छा कर स्थान को न जाए निजे जो इच्छा करूँ जो स्थान को इच्छा करूँ से स्थान को जाई से आम समस्या पड़ी था सदाप्रभुकर क्रोधर पात्र होता सदाप्रभुकर क्रोध आम निकट को आसी थाए। मोर प्रिय माने होइपारे ईश्वर एक महान कार्य करने एवं ताकर उद्देश्य को सफल करने गोटे नूतन स्थान को जीवाई आपण मानक मनोनीत कर पारती आपण मानक डाकी पारती आपण मानकर वर्तमान शारीरिक स्वच्छंद सुरक्षा आओ आराम आपण मानक ईश्वर ठारू दूर को नहीं न जाओ आपण मानकर जागतिक अभिलाष आपण मानकर जागतिक इच्छा आपण मानकर जागतिक मोह
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂର ନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନନ୍ତ ଲୋକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏ ଆମର ଲୋକମାନେ, ଏ ଲୋକମାନେ ଆମର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ମନୋନୀତ ବଂଶ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମକୈତ୍ରିକ ସହର, ଯୋଉଟାକି କୌଣସି ସହରର ନା ଉର୍, ସେହି ସହରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି କିନାନ ଦେଶ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଉର୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ବା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଦେଶ, ସେହି ଗୋଟେ ଦେଶ ନିକଟକୁ ନେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶ ଈଶ୍ୱର କୈତ୍ରିକ ଦେଶ ହେବ, ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦେଶ ହେବ, ଆଉ ଏହି ଦେଶ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାହାକି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ଛୋଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସିନା ଦାନତା ମହାନ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦେଶ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଅଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମହାନ ଦେଶ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ଦେଶ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଅନେକ ମହାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଗୋଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ସାନ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ମହାନ, ଅତି ବଡ଼। ଏହି ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଜ୍ଞାନରେ, କୌଶଳରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ଦେଶ ଅତି ମହାନ ଅଟେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସାରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଜାଗା ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦେଶକୁ କୌଣସି ଦେଶ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏହି ଦେଶକୁ ଭୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ ଅଟେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଦେଶ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ସେହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେହି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଆଉ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ବାହାରି ଯାଇକି ସେ କିରାନ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାହାରିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କିରାନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆମେ ଭେଟିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଆପଣ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ପାର୍ଥବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜଗତର ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।